Hello students, today we will discuss how we can find or calculate the directional derivatives of all those functions which are not differentiable. Myself Dr. Hirschberg, I will explain you with the help of 15 plus examples. You can follow and subscribe my YouTube channel. What we have discussed so far, we have learned why there is a need of the directional derivatives in a very simple manner. In this lecture, we learn there are the two types of the directional derivative. Type 1 is when we are using the definition of the directional derivative, and the definition says you can calculate the directional derivatives by using limit h approaches 0 f of x naught plus h u1 y naught plus h u2, where x naught and y naught are my given point where we are needed to calculate the function directional derivative, and u1 and u2 are the components of the unit vector. That means u1 I cap plus u2 j cap. एक्स नॉट वाई नॉट वो पॉइंट होगा जहां पे आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है. u1 एंड u2 आर माय कंपोनेंट्स ऑफ द यूनिट वेक्टर. और किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कब बोलते हो आप? इफ आई से ए आई कैप प्लस बी जे कैप, इस वेक्टर को आप यूनिट वेक्टर कब बोलोगे? whenever a square plus b square must be 1. फाइन. एंड जब कभी भी राइट हैंड साइड की जब आप लिमिट निकालो, whenever the limit exists then you can say the directional derivative existence. whenever, और अगर आपके राइट हैंड साइड की लिमिट इंफिनिटी और डज नॉट एग्जिस्ट आ गई, then you can say the directional derivative does not exist. Type 2 is we are using the gradient formula to calculate the directional derivative. But क्वेश्चन ये उठता है कि एग्जामिनेशन में कैसे पता लगे when you can use the type 1 and when you can use the type 2. I will tell you in a very simple manner. Type 1 is used when the function is not differentiable. Fine. और function differentiable कब नहीं होगा? Whenever the function you can see in the form of the cases f1 and f2, or whenever you can see the function is in terms of the modulus, because we all knows mod of x is not differentiable. Fine. तो जब कभी भी आपने ये प्रूफ कर दिया कि फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, then we can use the type 1. Second is type 2 is used when the function is my differentiable. तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ type 1 के बारे में सीखेंगे, when how you can apply the formula to solve the problem. For more detail, as I mentioned you can watch my playlist Mathematics 1 Calculus, and you can see the directional derivative, implicit function and many more lecture available in this playlist. जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए. I can start the lectures here. Find the directional derivatives of the f at the point 0, 0. आपका पॉइंट क्या है? Given point is 0, 0. That is given to be x naught. And u cap, ये आपका क्या होता है? डायरेक्शन. डायरेक्शन इज गिवन टू बी 4/5 I cap plus 3/5 j cap. First of all, check whether this is my unit vector or not. How you can check that? You can see the coefficient of the I cap plus square of the coefficient of I cap plus square of the coefficient of the j cap. If it is a 1, then yes, it is my unit vector. Once it is my unit vector, you can write as a u cap is 4 I cap. You can compare the unit vector is u1 I cap plus u2 j cap, or you can compare the unit vector is a I cap plus b j cap. चॉइस आपकी है. अगर आपके पास x y z भी होगा साथ में, then you can write as a u3 k cap, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो c k cap. Fine. Right now in this example consists of only the two variables. Fine. So I can say a is my 4/3, b is my 3/5. Now because the function is written in the form of the cases, जब भी cases की form में आ जाए, we can always apply the type 1. Clear? Now what is the value of the x naught? X naught is my 0. So that will be 0 plus h of u1 comma h of u2 minus f of 0, 0 divided by h. और अगर आपको u1 u2 नहीं लिखना, you can write as a a1 and a2, both have the same meaning. I can substitute the value in the given function. तो कितना हो जाएगा? लिमिट h approaches 0, that is a
x cube, h cube, a cube plus h cube, b cube and so on. न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से h कैंसिल हो जाएगा. You will get a cube plus b cube divided by a square minus b square. Substitute the value of the a, substitute the value of the b, and you can use your calculator and get the answer is 13 divided by 5 is the right answer. Look at the next one. The directional derivatives of the function given point is my 0, 0, which is x naught, y naught. अगेन ये फंक्शन आपको केसेस की फॉर्म में दे रखा है, तो आपको टाइप 1 से आपको इवेल्युएशन करना है. वेक्टर क्या आपके पास है 1 i कैप प्लस 1 j कैप. क्या ये यूनिट वेक्टर है? नो, बिकॉज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1. सो आपका टारगेट क्या है? इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में convert करना है. How you can do that? You can divide it by its length. So what is the length of the unit vector is root 2 under root of a square plus b square. So the unit vector comes to be 1 by root 2 I cap, 1 by root 2 j cap. Now I can substitute the value. What is the directional derivative? X naught is 0, y naught is my 0. I can substitute the value f h of u1 h of u2 minus f of 0, 0 divided by h. और चाहे तो आप यहाँ पे u1 and u2 की वैल्यू फिल कर दो. 1 by root 2 is my u1, second is 1 by root 2 is my u2. सब्स्टिट्यूशन कर दिए दोनों वैल्यू इन द गिवन इक्वेशंस, तो क्या बन जाएगी आपके पास x स्क्वायर 1/2 h स्क्वायर इंटू y h by root 2 डिवाइडेड बाय h की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड सो ऑन. कंप्यूट कर दो. न्यूमिनेटर से h क्यूब और यहां से h स्क्वायर रह जाएगा. h स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दो. सो 1 by root 2 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर बाय 4 plus 1/2. Now you can take the limit as h approaches 0. You will get answer is 1/root 2 is the directional derivative of the problem. Look at the third one. Again you can see whenever x is 0 it's a 0, and whenever x is non-zero the function is not differentiable. So I can start with the again ये cases की फॉर्म में है. पॉइंट आपको दिया हुआ है. क्या यूनिट वेक्टर आपको गिवन है? डू यू हैव अ यूनिट वेक्टर? नो. फाइन. अब आप क्या करते हैं यूनिट वेक्टर की इन जनरल ले लेते हैं एनी वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप वेयर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 1. तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं. फाइन. एट द पॉइंट 0, 0 पे निकालना है, तो x नॉट इज 0, y नॉट इज 0. सब्स्टिट्यूशन करते हैं इस गिवन इक्वेशन में, तो क्या बन जाएगा लिमिट h अप्रोच इज 0 x इज अ नॉन जीरो, तो यहाँ पे h इज नॉन जीरो, तो सब्स्टिट्यूशन कर दो. यू विल गेट साइन ऑफ y square divided by, so it will be h b square over a into under root of h square a square plus b square 1 हो जाएगा. x is my 0, तो जैसे ही x 0 होगा f is my 0 divided by h, तो ये नंबर आपका इससे कैंसिल हो जाएगा. फाइन. सो योर रिजल्ट विल बी साइन ऑफ h b square by a. whenever h is 0 sin of 0 is my 0, so which is existence. Fine. Therefore directional derivative is existence for all a and b. Fine. So that means the first answer is directional derivative is existence for in all the direction. Yes, whatsoever the answer of whatsoever the value of the a and b. अगर आप में से कोई ये सोच रहा है सर अगर a की वैल्यू 0 हो गई फाइन तो ये आपका इंफिनिटी हो जाएगा. नो. अगर a 0 है तो अकॉर्डिंग टू दिस केस b इज माई प्लस माइनस 1, तो जैसे a 0 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वैल्यू 0 हो जाएगी. फाइन. तो जैसे फर्स्ट कंपोनेंट आपका 0 हुआ तो ये नंबर आपका इंस्टेड ऑफ द साइन दैट नंबर विल बी 0, तो उस केस में आपका आंसर भी फिर भी फाइनाइट ही आएगा. फाइन. सो दैट मींस द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज एग्जिस्टेंस इन ऑल डायरेक्शन. क्या कोई ऐसी डायरेक्शन मिलेगी जहां पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता? आंसर इज नो, बिकॉज फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके हैं. इट इज एग्जिस्टेंस इन ऑल डायरेक्शन. चलिए अब यहाँ पे आप देखो ये केसेस की फॉर्म में नहीं है, तो क्या ये टाइप 1 है और टाइप 2 है? चेक वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द गिवन पॉइंट और नॉट. सो वी नो mod of y minus 2 is not differentiable at कहां पे नहीं होगा y is equal to 2. Similarly
mod of x minus 1 is not differentiable at x is equal to 1. Therefore, at the given point, the function is not differentiable. अगर function differentiable नहीं है, then we can apply the type 1. Again, the vector is given to you. It is not a unit vector. I can convert into the unit vector. Now, by using the type 1, I can find the limit h approaches 0, x naught is my 1, y naught is my 2. तो सब्स्टिट्यूशन कर दो गिवन फॉर्मूले में, लिमिट h approaches 0, y minus 2. तो जैसे y minus 2 करेंगे, that is a 1 by root 2 of h under root of x minus 1. So that will be h divided by root 2 minus 1, 2 पे वैल्यू आपकी 0 हो गई. क्लियर? तो ये h और ये h आपका कैंसिल हो जाएगा और अदरवाइज मोड ले लो. फाइन, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 by root 2 और इधर से भी 1 by root 2 इज आउटसाइड. सो दैट विल बी लिमिट. तो यह क्या रह गया, मोड ऑफ h, और यहाँ पे क्या रह गया, मोड ऑफ h. और नीचे वाले h को मैं मोड की फॉर्म में लिख सकता हूं. ठीक है, तो अब आप इसमें कैंसिल कर दीजिए. नाउ यू कैन सी योर आंसर विल बी h की पावर 3 by 2 divided by h. As h approaches 0, it goes to the 0. So the directional derivative is my 0 is the right answer. Consider the function, then at the point 0, 0, check whether the directional derivative exists along any straight line or not. Point आपको given है, but unit vector given नहीं है. Again, I can consider as the a I cap and the b j cap. Again, आपके पास cases की फॉर्म में है. I can start with the directional derivative at the point 0, 0. Substitution कर दो. Whenever x, y is 0, 0, तो ये पीछे वाली चीज तो 0 हो गई. And the front side is h cube, a cube divided by x square plus y square. तो h square कॉमन हो जाएगा. a square plus b square minus 0 divided by h. Limit h approaches 0. Because a square plus b square is my 1, तो ये वैल्यू आपकी 1 हो गई. h square इसे h और ये h से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज माई a क्यूब. एंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द a की कोई भी मर्जी वैल्यू हो, फाइन. So the directional derivative is existence in all direction. तो क्या इसका आंसर is either is existence on the straight line? Yes, because the directional derivative is existence along this any straight line. Moreover, it also existence in the any path. It may be the parabolic, it may be the circle, it may be hyperbolic. हर किसी path पे आपका directional derivative exist करेगा. Look at the next one. If f is a function defined as y is a non-zero and y is 0, directional derivative of the f at the point 0, 0 existence. तो इस बार आपको ये given है. फाइन. along the direction, क्या ये यूनिट वेक्टर है आपके पास? cos of alpha I cap plus sin of alpha j cap. Yes, it's a unit vector, so I can write as a u cap. Then your target is to find the value of cot alpha. Unit vector given है, so I can start with the definition of the directional derivative. Find at the point 0, 0. तो फिल कर देते हैं, वैल्यू कितनी आ गई, लिमिट h approaches 0, 0, 0 पे y is 0. फाइन, तो ये तो वैल्यू 0 हो गई आपकी, और यहाँ पे 1 प्लस x over y, so that will be cot of alpha square माइनस 0 डिवाइडेड बाय h. नाउ अब अगर आप ये सोच रहे हो कि h की वैल्यू 0 फिल करके ये नंबर बन गया आपका इंफिनिटी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. दैट मींस द डायरेक्शनल डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट. बट यहाँ ऑलरेडी आपको दिया हुआ है डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्टेंस है. तो ये एग्जिस्टेंस कब बनेगा? एग्जिस्टेंस तभी बनेगा जब ये 0/0 की फॉर्म होगी, तभी आप एलोपिटर लगाओगे. तो 0/0 की फॉर्म होने के लिए 1 प्लस कोट स्क्वायर, it must be existence because the directional derivative exists. इसका मतलब क्या होगा, ये जो आपके पास है 1 प्लस कोट, ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी आप एलोपिटर लगाओगे. एंड वंस इट विल बी 0, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ द कोट ऑफ अल्फा? यही तो निकालना आपको. कोट ऑफ अल्फा इज माई -1 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. अब जैसे आपको कोट अल्फा मिल गया तो आपको एंगल भी मिल जाएगा. इट्स -π/4. अब अगर आपको किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन में
कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा एंड सो ऑन, किसी की वैल्यू पूछ ली जाए, you can substitute it and get the answer. Now look at the next part. Function is given to you. Find the directional derivatives at the point 0, 0 in the direction and so on. चलिए सबसे पहले ए पार्ट करते हैं. ए पार्ट में वेक्टर क्या दे रखा है, 0 i कैप प्लस 1 j कैप. इज इट अ यूनिट वेक्टर? यस, आई कैन राइट एज ए u कैप. इनिशियल पॉइंट x नोट y नोट आपको क्या दे रखा है, 0, 0. तो वेदर द टाइप 1 और टाइप 2, इट इज ऑलवेज द टाइप 1 बिकॉज इट्स केसेस फॉर्म. अदरवाइज मैं आपको एक टिप्स दे देता हूं. whenever the function is of the form x की पावर a y की पावर b divided by x की पावर c plus y की पावर d such that a b c and d are strictly greater than 0. याद रखना ये strictly greater than होना चाहिए 0. then such function is said to be continuous whenever a over c plus b over d is strictly greater than 1. ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा whenever a over c plus b over d is greater than of the 1 plus. ये दोनों टिप्स आपके पास CSR नेट, गेट और किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए मच बेनिफिशियल है. और आपसे कोई पूछा जाए कि वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट, यू कैन सी a over c plus b over d इज इट ग्रेटर देन 1? यस, तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है. Is this function is greater than of the 1 plus 1 over c? Clearly say no, because ये equality हो गया ना, 3/2 is 3/2, but we need a greater than. The function is not differentiable. So once the function is not differentiable, we can apply the type 1. ये shortcut tricks आप अपने notes में लिख कर रख लीजिए so that you can know whether the function is differentiable or not. Condition याद रखनी है, a b c d must be greater than 0. Then you can say function at the point 0, 0 is continuous or not. 0, 0 पे ही चेक हो रहा है ये फंक्शन. चलिए यूनिट वेक्टर दे रखा है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है. आई कैन स्टार्ट विद द टाइप नंबर 1. आई कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. लिमिट h अप्रोचेस 0, x, y 0, 0. पहले दोनों तो 0 नहीं है, सब्स्टिट्यूट दैट. x की वैल्यू 0 है तो दैट नंबर इज माई 0 minus 0 over h. तो आंसर विल बी directional derivative in the direction of the 0 i cap plus 1 j cap is my 0. ये आपके पास फर्स्ट मेथड है. इसी एग्जांपल की अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो यूनिट वेक्टर कहां गया आपका, यूनिट वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ ओनली y एक्सिस. यही तो है ना, 0 i cap एंड 0 j cap, ये होगा ना. तो ओनली y एक्सिस का क्या मतलब है, दैट मींस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू y. सो इन द ओनली इन द y एक्सिस, तो इसका मतलब मैं पार्शियल डेरिवेटिव भी निकाल सकता हूं. फाइन, क्योंकि अगर आपका ओनली y एक्सिस है तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्विवेलेंट टू द पार्शियल डेरिवेटिव. तो क्या डेफिनेशन थी पार्शियल डेरिवेटिव की, इस लेक्चर में सीखा था ना हमने पार्शियल डेरिवेटिव 12 प्लस एग्जांपल में. क्या था डेफिनेशन, लिमिट y अप्रोचेस 0, किस पॉइंट पे निकाल रहे हो आप, 0, 0 पे. तो 0, y माइनस 0, 0 डिवाइडेड बाय y. यही तो था. चाहे तो आप इसे h लिख लीजिए, चॉइस आपकी है. अगेन you can substitute the value, that will be k approaches 0, 0 minus 0 over k. Answer is remain the same. Look at the second part. अब ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 1, 0 only on the x axis. तो इसका मतलब इस केस में डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्विवेलेंट टू द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. फाइन, तो इसका मतलब मैं इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व कर सकता हूं, एक बाय यूजिंग द पार्शियल डेरिवेटिव और एक बाय यूजिंग द डायरेक्शनल डेरिवेटिव. तो मैं दोनों मेथड से सॉल्व कर दे रहा हूं आपको. तो वैल्यू फिल करते हैं फिर से. लिमिट h अप्रोचेस 0, h, 0, अब इस केस में y 0 है, 0 minus 0 डिवाइडेड बाय h. आंसर इज अगेन 0. सेकंड डेफिनेशन, सेकंड मेथड, बिकॉज इट ओनली ऑन द एक्स एक्सिस, तो मैं पार्शियल डेरिवेटिव से अप्लाई करता हूं. इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, f of h, 0, सब्स्टिट्यूशन करोगे अगेन 0 minus 0 इज माई 0. थर्ड केस में क्या ये ओनली एक्स एक्सिस है, नो. क्या ये ओनली, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये यहां पे आएगा ना तो ये एक्स एक्सिस है प्रॉपर ओनली, ना तो ये अकेला वाई एक्सिस है. इसका मतलब इसमें सेकंड मेथड पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा. क्या ये यूनिट वेक्टर है, बिल्कुल है.
पॉइंट क्या दिया हो आपको 0,0, तो आई कैन स्टार्ट विद द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं वैल्यूज की, लिमिट h अप्रोचेस 0, यहाँ पे फिल कर दो ट्वाइस एक्स स्क्वायर इंटू वाई 1/√2 ऑफ h डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओनली h स्क्वायर बाई 2 प्लस h स्क्वायर बाई 2, दैट्स h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। एक h से एक h कट जाएगा, h स्क्वायर से एक h स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर विल बी 1/√2 इज द राइट। चलिए लुक एट दिस वन। सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये यूनिट वेक्टर है आपके पास, 4i कैप प्लस 3j कैप, इज इट अ यूनिट वेक्टर? Clearly say 4 square plus 3 square is not equal to 1, so that is only my vector. How you can convert into the unit vector? I can divide it by its length. So length कितनी होगी इसकी, 4 square plus 3 square, so that will be 4/5 i cap plus 3/5 j। अब आप फंक्शन को चेक करो whether the function is differentiable or not, तभी पता लगेगा ना आपको कि टाइप 1 अप्लाई करनी है कि टाइप 2 अप्लाई करनी है आपको। अब आप देखो फंक्शन क्या आपका, इस पॉलिनोमियल 2xy माइनस 3y स्क्वायर, और किस पॉइंट पे निकालना है 5,5। क्लियरली से द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 5,5, दैट मींस यू कैन अप्लाई द टाइप नंबर 2, फाइन। बट जो क्वेश्चन आप टाइप 2 से सॉल्व कर सकते हो वो टाइप 1 से भी सॉल्व कर सकते हो आप, बट जो क्वेश्चन आप ओनली एंड ओनली टाइप 1 से सॉल्व करते हो वो टाइप 2 से सॉल्व नहीं हो सकते, बिकॉज टाइप 2 के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो सेम एग्जांपल मैं टाइप 2, जब मैं आपको टाइप 2 लेक्चर करवाऊंगा तब भी एक्सप्लेन करूंगा। तो राइट नाउ आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ द टाइप 1। मैं फिर कह रहा हूं सेम इस क्वेश्चन को आप टाइप 2 से सॉल्व करोगे आंसर जल्दी आएगा, बट दोस्त हु आर इंटरेस्टेड आई कैन सॉल्व फॉर द टाइप 1 एज वेल। तो सब्स्टिट्यूशन कर दो x, y, तो 2xy, ये x y माइनस 3 टाइम्स y स्क्वायर इन माइनस ऑफ एफ वाई वाई। अब आप ओपन करते हैं ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5, तो ये आपका कट जाएगा। सिमिलरली 3 इधर से खोलेंगे 3 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं ब्रैकेट खोलता हूं इस लिमिट्स की भी, ट्वाइस 5 इंटू 3h बाई 5 से 3h 4h, फाइन, प्लस 4 3 12 h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 माइनस 3 a स्क्वायर में 5 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज अ b स्क्वायर प्लस 2ab 6h, और ये आपका कैंसिल हो गया, फाइन। नाउ यू कैन ओपन द ब्रैकेट, इट इज अ 6, ये कितना हो गया आपका 7h, 7 2 14h प्लस 24 h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 माइनस 27/25 h square minus 18h divided by h. Now you can take h as a common from the numerator and divide it by the denominator. So h cancel हो जाएगा, so and then take the limit as h approaches 0. ये चीज 0 जाएगी, ये 0 जाएगी, 14 minus 18 minus 4 is the right answer of the problem. That is a directional derivative. मैं फिर कह रहा हूं इस एग्जाम्पल को आप टाइप 2 मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी लेक्चर अवेलेबल है 15 प्लस एग्जांपल्स ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाइन। तो आप ये वाला सेम एग्जांपल इस वाले मेथड से भी सॉल्व करिए एंड देन यू कैन चेक योर आंसर्स, इज इट फाइन? सो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, वी विल सी द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। अगर आप सब्सक्राइब करोगे चैनल दैट्स वेरी गुड, एंड मार्क इंटरेस्टेड टू वॉच मोर वीडियोस इन द कमेंट बॉक्स। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।